So basically, in today's class, we have to talk about basic syntaxes in C, right? On your screen, in the slide, you can see there are 6 topics that we have that I have written. One is token, second semicolon, third comments, fourth identifier, fifth is keyword, and sixth is white space. Out of these 6, I guess we have already discussed semicolon and comments. ये हम लोगों ने already discuss किया है, but again we'll discuss it in the coming slides. So what are these topics and why it is called as basic syntax in C? Very first thing first, जब कभी भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि what are the different syntaxes. Now when I'm talking about syntax, it means I'm talking about the grammar it takes to write the correct code. Right? We must know the nomenclature. We must know the technical terms. We must know the technicality of a program. What are the do's and don'ts of writing a C program or any program for that matter? Right? So for doing that, we have to understand these terms. Right? What do you mean by tokens? What do you mean by identifier? The number 5 topic is keyword. This is the one of the most important topic of basic syntaxes in C. Right? So for that, we will be seeing what are the different syntaxes, starting with tokens. अब जैसे नाम आपको समझ में आ रहा है tokens. Tokens का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है. If you just discuss the example first. Example में हमको क्या दिख रहा है? That we have written printf, then in round bracket, in double quotation we have written hello world /n, double quotation close, then round bracket close and then semicolon. This we have executed several times in the last class also. ये हमने देखा है. /n भी हमने देखा है, which is a new line character, right? Now this is a single statement. Printf hello world semicolon. This is a single statement or single line of code. But if I have to ask you कि इस single line में कितने tokens हैं, so you can see it on the screen, the different number of tokens. So what do you mean by token? In this particular line, printf hello world /n semicolon, what are the different tokens that you can see of? So very first token is printf. As you can see, this is an individual token. Excuse me, sir. Screen देखो मैंने share की है. नहीं दिख रही. सभी को स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? चेक करो. I'll just share it again. वाले इस पे पिन करो. I'll just share it again. But अगर next time से नहीं दिखती है तो presentation वाली स्क्रीन को आपको पिन करना है. ठीक है? Okay, sir. दिख रही है अभी सर. Thank you. Right. So I was talking about tokens. So in this particular line, printf hello world, then /n and semicolon. What are the different tokens that you can see? Tokens मतलब होता क्या है? Tokens are basically वो सारी चीजें होती है जो या तो कीवर्ड होगी, या तो आइडेंटिफायर होगी, या तो कांस्टेंट होगी, या स्ट्रिंग होगा, या सिंबल होगा. अब आप बोलोगे कि what are these things? First of all, अगर मैं इस लाइन को सिंप्लीफाई करूं, so very first thing which I can understand here is printf. So printf identifies a function that we have been calling from stdio.h. So this is a name of a function. So this becomes first individual token. Then next is round bracket open. So this becomes another token, right? Then next is double quotation में लिखा हुआ text. जो भी टेक्स्ट हम लोग डबल कोटेशन में लिख रहे हैं, ये पूरा टेक्स्ट होता है अ सिंगल टेक्स्ट, एंड दिस सिंगल टेक्स्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग. So a string can be a token. Then after completion of this double quotation, what do we see? We see another round bracket, which is the closing round bracket. So this becomes number 4 token. And the last one is the terminator symbol, which is semicolon. So in this single line, there are 5 different tokens, right? इसको और सिंपल तरीके से समझना हो, सो टोकन्स का मतलब ये है, जब सी टोकन्स को हम लोग समझ इसलिए रहे हैं बिकॉज व्हेनेवर आवर प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ये तो हम पढ़ रहे हैं कि printf है, देन राउंड ब्रैकेट है, देन डबल कोटेशन है, देन वर्ड लिखा हुआ है, देन /n है, डबल कोटेशन क्लोज्ड, then round bracket close and then semicolon. This we can understand, we can learn and we can identify. But how your computer is going to understand कि इस लाइन में क्या क्या किया हुआ है. So to understand the machine को समझने के लिए मशीन अपने हिसाब से एक लाइन को tokens में डिवाइड करता है. समझ रहे हो? It divides a single statement into different tokens.
ताकि हर एक स्टेटमेंट में हर एक पार्ट का क्या क्या मीनिंग है. सो वंस नाउ जो टोकन्स हमने डिवाइड किए, सो नाउ योर कंपाइलर विल अंडरस्टैंड दैट ओके द वेरी फर्स्ट लाइन में पहला टोकन है printf. सो योर कंपाइलर विल अंडरस्टैंड दिस इज अ printf फंक्शन. printf फंक्शन स्टार्ट कहां से होता है वो समझने के लिए उसने सेकंड टोकन आइडेंटिफाई किया, ओके दैट दिस राउंड ब्रैकेट आइडेंटिफाइज द स्टार्ट ऑफ माय printf. देन डबल कोटेशन के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है दैट गेट्स डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन. सो कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि डबल कोटेशन स्टार्ट और डबल कोटेशन एंड ये पूरा एक ही सिंटैक्स है और ये एक सेंटेंस मतलब मुझे सीधे सीधे इसको प्रिंट कर देना है. सो दिस बिकम्स द थर्ड टोकन. देन वंस द डबल कोटेशन क्लोज्ड, वो इस ओपनिंग राउंड ब्रैकेट का क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट पेयरिंग में ढूंढेगा. अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो एरर देगा. बट हियर हमारा सिंटैक्स सही है तो हमें इस ओपनिंग राउंड ब्रैकेट का पेयरिंग में राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया है. एंड वंस आई गॉट दिस, योर कंपाइलर विल लुक फॉर द टर्मिनेटर सिंबल व्हिच इज सेमीकोलन. सो कंपाइलर, हमने कंपाइलर अंडरस्टैंड किया है. व्हाट इज बाय कंपाइलर हमने देख लिया है. सो कंपाइलर बेसिकली डिवाइड्स योर कंप्लीट स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट को वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है. एंड दोस डिफरेंट पार्ट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज टोकन्स, इंडिपेंडेंट टोकन्स. एंड दीज टोकन्स वो कौन से हो सकते हैं? वो टोकन या तो एक स्ट्रिंग हो सकता है जो हमने देखा, या तो वो एक आइडेंटिफायर हो सकता है. आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? बेसिकली a name which I can identify with. printf is a name of a function, so that becomes an identifier, right? उसके अलावा symbol, ये एक symbol है, that is opening round bracket, then closing round bracket, and then terminator. These are symbols. So यहाँ पर आप देखोगे a C program consists of various token. और टोकन क्या क्या हो सकता है? कीवर्ड. अब कीवर्ड क्या है ये हमने देखा नहीं है, बट we'll see in the next few slides. आइडेंटिफायर मतलब कोई भी एक ऐसा टर्म जिससे हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे printf है, इट इज अ नेम ऑफ अ फंक्शन. कांस्टेंट भी हम देखेंगे क्या होता है. अ स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग का मतलब ये कि एक टेक्स्ट जो डबल कोटेशन में है, एंड अ सिंबल मतलब अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टोकन्स. आई रिपीट इट वंस अगेन. टोकन्स का मतलब क्या है और इसको जरूरत क्यों पड़ती है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है. आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको दो क्वेश्चंस का आंसर हमेशा आना चाहिए. दैट व्हाट इट इज एंड व्हाई इट इज. अगर आपको ये दो क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि भैया ये क्यों है और क्या है. सो हियर अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय टोकन एंड व्हाई डू वी नीड टोकन्स. बराबर है, हमको ये पता होना चाहिए कि भैया टोकन है, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं ये भी पता होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय टोकन्स इज, इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज टेक्निकल ना करते हो. आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन इज कि जब कोई भी एक लाइन ऑफ कोड है, जैसे यहाँ पर printf hello world वाला सिंगल लाइन है, सो दिस पर्टिकुलर लाइन को कंपाइलर को समझना है, अपने हिसाब से वो समझना है कि इस लाइन में करना क्या है मुझे. सो वो क्या करता है, कंपाइलर डिवाइड्स अ सिंगल स्टेटमेंट इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स. Those independent parts are called as tokens. और वो डिवाइड कैसे करेगा? अपनी मर्जी से तो नहीं करेगा कि printf का सब pri अलग कर दिया एंड ntf अलग कर दिया, ऐसा करेगा क्या? नहीं. सो डिवाइड करने का भी एक पर्टिकुलर रूल है. दैट रूल इज इट आइडेंटिफाइज कि उस लाइन में क्या क्या चीजें हैं. क्या क्या चीजें मतलब, क्या उसके पास कीवर्ड आया है तो उसको अलग कर देगा, अगर आइडेंटिफायर है तो उसको अलग कर देगा, कांस्टेंट आया है तो उसको अलग कर देगा, स्ट्रिंग है तो उसको अलग कर देगा, या सिंबल है तो उसको अलग कर देगा. So in this case, ये हमारे 5 individual token है. The very first is printf, which is the name of a function. And name of a function, that means I'm talking about identifier. उसको एक identifier मिला, उसने उसको अलग कर दिया. Now your compiler understand that the start of this line has the name of a function printf. That means this line is all about printing a text. After having the name of the function, it looks after the second token, which is a symbol, ये जो है आपका राउंड ब्रैकेट ओपन, दिस इज अ सिंबल. देन द थर्ड टोकन इज डबल कोटेशन में लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट. जो भी आप डबल कोटेशन में लिखते हो उसको वो कंप्लीट एक एंटिटी समझता है, कंप्लीट एक टोकन समझता है. एंड दैट सिंगल टोकन इज नथिंग बट स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स. आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग. हमने लिखा था वेलकम टू RCRT, दैट इज आल्सो अ स्ट्रिंग बिकॉज वी हैव बीन राइटिंग दैट इन डबल कोटेशन. ओके, देन आफ्टर द थर्ड टोकन, उसको फोर्थ टोकन क्या मिलता है? अगेन अ सिंबल व्हिच इज अ क्लोजिंग
राउंड ब्रैकेट, एंड देन आफ्टर दैट उसको फिफ्थ टोकन मिलता है विच इज अ सेमीकोलन विच आइडेंटिफाइज द एंड ऑफ लाइन। जैसे ही कंपाइलर को एंड ऑफ लाइन सेमीकोलन मिल जाता है तो उसको पता चल गया कि उसने वो पूरी लाइन को डिवाइड कर दिया है इनटू नंबर ऑफ टोकन्स, इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट्स। और टोकन्स की जरूरत इसीलिए पड़ती है बिकॉज इट हेल्प्स द कंपाइलर टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट हैज टू परफॉर्म। क्लियर है यहाँ तक कि क्या है और क्यों है? सो टोकन्स आर बेसिकली tokens are an independent part of a statement which can be keyword, identifier, constant, strings, or a symbol. And why do we need to have divide the tokens or define the statement with number of tokens? So that your compiler will get a better idea what exactly compiler has to perform while compiling the statement. थोड़ा बहुत क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? कैसा ऊपर से गया कि पता नहीं कुछ समझा नहीं? Clear. So Ritik said clear. We are going to we will go to the next topic which is semicolon. So semicolon तो हमको पता ही है. Semicolon मतलब it is a statement terminator. ये हमने ये भी डिस्कस किया है that similarly in English language we have full stop. Whenever we see a full stop, we identify it as an end of line. For example, Ram is a good boy, full stop. Ritik is a good boy, full stop. So full stop identifies as end of line. वैसे ही here in C language, whenever I want to end a statement, whenever I want to end a line of code, I have to terminate it. And for terminating this, we have to use semicolon. So every individual statement must be ended with a semicolon. ये हमने भी देखा है that जितने भी statements होंगे, जितनी भी line of code होंगी, सारे line of code को हमको semicolon में end करना है. If I forget to write a semicolon, I will definitely get an error because वो बोलेगा कि ये आपका syntax जो है वो करेक्ट है. ठीक है, नीचे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं. वी हैव रिटन टू printf लाइन, hello world /n एंड वेलकम टू RCRT सेमीकोलन. सो दोनों स्टेटमेंट्स में आप देखो एंड में सेमीकोलन लगाया गया है. इफ आई आस्क यू कि जो फर्स्ट लाइन लिखी गई है printf hello world /n डबल कोटेशन, उसमें कितने टोकन्स हैं? तो हमने देखा था एक printf is 1, then second token is opening of round bracket, third token is the string that is hello world /n, number 4 is closing of round bracket, and number 5 is semicolon. Can anybody tell me how many tokens are there in the next line which is welcome to RCRT? 5. What are those? 5 tokens. 5. कौन से? I use printf and bracket and हाँ सही है. semicolon Printf. and then semicolon, welcome to RCRT, printed open and second bracket and semicolon. Right. So this printf will be first token, which is an identifier. This opening round bracket, just pay attention to what am I referring this to? ये एक round bracket है, but ये opening round bracket है. So second number is opening round bracket. Third is a string. तो double quotation में लिखा गया that is string, that is welcome to RCRT exclamation. This is fourth, a symbol which is closing round bracket, and number 5 is semicolon, which is a terminator. So I guess tokens are also clear and semicolons are also clear with you. Now number 3 is, ये भी हमने already देख रखा है, but we'll just revise it up. Comments का मतलब सिंपल ये होते हैं कि other than the code, codes के अलावा जो हम लोग चीजें लिखते हैं हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, वो हो जाते हैं कमेंट्स. और बेसिकली कमेंट्स आर दोस पार्ट ऑफ लाइन व्हिच आर कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. इग्नोर्ड का मतलब हम उसको ऐसे लिखते हैं कि वो कंपाइलर जो है वो उसको कंसीडर ही नहीं करता है एज अ पार्ट ऑफ कोड. सो वो करने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट. वन इज सिंगल लाइन कमेंट, सेकेंड इज मल्टीपल लाइन कमेंट. देन ये हमने देखा ही है कि सिंगल लाइन कमेंट इज बेसिकली जो स्टार्ट होता है लाइक दिस, कि आपने डबल स्लैश किया है, उसके बाद आप जितना भी लाइन लिखते हैं दैट पर्टिकुलर लाइन गेट्स कमेंट. वो आपको दिखाई देगा बट द कंपाइलर विल नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ अ कोड. एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल लाइन कमेंट, जिसके दो पार्ट्स है, एक स्टार्टिंग पार्ट होता है और एक एंडिंग पार्ट होता है. सो दिस आइडेंटिफाइज द स्टार्ट ऑफ मल्टीपल लाइन कमेंट, दिस आइडेंटिफाइज द एंड ऑफ मल्टीपल लाइन कमेंट, व्हिच आइडेंटिफाई द स्टार्ट स्लैश एंड एन एस्टेरिस्क, एंड एंड आइडेंटिफाई करने के लिए होता है एस्टेरिस्क एंड स्लैश. इसके बीच में आप जितने भी मल्टीपल लाइन लिखते हो, ऑल दैट multiple line will get comment. It will be there in your code, you can read it, but the compiler will completely ignore it. It won't consider as a part of your code.
ठीक है, ये हमने देखा है, हमने करके भी देखा है। नंबर 4 इज एन इंपॉर्टेंट वन विच इज आइडेंटिफायर। प्रीवियस केस में ही हमने जो प्रिंटफ देखा था, दैट इज एन आइडेंटिफायर। अब आप देखोगे व्हाट इज बाय आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज अ नेम व्हेनेवर देयर इज अ नेम इन योर प्रोग्राम, राइट। आइडेंटिफायर इज अ नेम व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। अगर हम वेरिएबल लिख रहे हैं तो वो आइडेंटिफायर हो गया। फंक्शन, हमारा प्रिंटफ था, प्रिंटफ इज अ फंक्शन, सो प्रिंटफ फंक्शन इज अ आइडेंटिफायर। और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम, कोई भी है जहां पे आपको कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स A to Z, स्मॉल A to Z या अंडरस्कोर या जीरो, लेटर्स, डिजिट्स जितने भी दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, आंख बंद करके आपको बोलना है कि वो आइडेंटिफायर है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो आप, नीचे एग्जाम्पल में है मोहम्मद, जारा, ABC, move underscore name A underscore 1 2 3, right? There is one read well, that means combination of small case and uppercase, right? A then followed by some letters, followed by some digits, followed by some letter, followed by some digits. A single character J starting with an underscore, then followed by alphabets, then alphabet followed by some digits. ये सब acceptable identifiers है। So basically identifiers बहुत simple था। It is a नेम। आइडेंटिफायर का मतलब एक ऐसा नेम जिससे हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और वो कोई चीज एक तो वेरिएबल हो सकता है, एक तो फंक्शन हो सकता है, या तो कोई भी यूजर की लिखी गई आइडेंटिफाइड डिफाइंड आइटम हो सकती है। और नेम जब हम दे रहे हैं किसी भी आइडेंटिफायर को, तो उसमें अल्फाबेट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, एंड द ओनली सिंबल विच इज अलाउड इन आइडेंटिफायर इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा और कोई हम स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज now we can understand C does not allow punctuation characters. ये सब allowed नहीं है. These are not allowed in identifier. And this we also know that C program is case sensitive. तो अगर मैं total लिख रहा हूँ with a capital T and a total लिख रहा हूँ with small t, so ये दो अलग अलग identifiers होंगे। क्यों identifier अलग अलग होंगे? Because case sensitive है, तो वो ये अलग समझेगा, because it's a capital T with OTAL and a small t with OATL. So total with two different ways of writing. एक में small caps है, sorry, एक में small letters है, एक में combination of both है. So compiler will identify these two identifiers as two different identifiers, though it has a same spelling. ठीक है? So this is all about identifier. Simple तरीके से जब कभी भी आप कोई भी collection of alphabets, numbers देखते हो, वो हो गया identifier. और कलेक्शन ऑफ नंबर्स और अल्फाबेट्स आर बेसिकली होते क्या है? या तो आप वेरिएबल डिफाइन करते हो उससे, या तो आप फंक्शन डिफाइन करते हो, या तो आप यूजर डिफाइन आइटम डिफाइन करते हो। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, यू विल गेट अ बेटर आइडिया व्हाट आर आइडेंटिफायर्स एंड व्हाट आर टोकन्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, कीवर्ड। यस आयुष, जब हम लोग आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं तो नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। इट कैन ओनली स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट या तो अंडरस्कोर से। इफ आई हैव टू टेक यू बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, तो आप देखोगे कि ईच एंड एवरी आइडेंटिफायर इज स्टार्टिंग विथ एन अल्फाबेट। वो सारे अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, एंड द ओनली एक्सेप्शन हियर इज दिस, जहां पे दिस अंडरस्कोर टेम्प इज स्टार्टिंग विथ एन अंडरस्कोर। सो एनी आइडेंटिफायर विल नेवर बी a valid identifier अगर वो कोई नंबर से शुरू हो रहा है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1 2 ABC, अगर मैंने ऐसा आइडेंटिफायर अगर लिखा है, so this identifier is not a valid identifier because it is starting with a digit which is 1 से शुरू हो रहा है, उसके बाद 2 भी आ गया, तो this is not। बट अगर मैं इसके आगे अंडरस्कोर लगा दूं तो वो वैलिड हो गया, उसके अंदर कोई भी एक कैरेक्टर लिख दूं, A1 2 ABC कर दूं तो भी वैलिड हो गया। दैट मीन्स जो just now Ayush mentioned that yes, an identifier is a valid identifier only if it starts with an alphabet or special symbol which is an underscore. उसके अलावा कोई भी identifier अगर नंबर से शुरू हो रहा है तो it is not a valid identifier. It should not start with a number. It should not also carry any other punctuation marks such as @ $, percentage, caret, asterisk, कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है? Now number 5, this is very important topic which is keywords. अब keywords का मतलब क्या है? Keywords बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। जब हम लोग C प्रोग्राम लिख रहे हैं
तो सी प्रोग्राम लिखते समय हमने देखा है कि हमने कुछ कुछ ऐसे टर्म यूज किए हैं जो ऑलरेडी वहां पे उसके ऑलरेडी वहां पे डिफाइंड थे. फॉर एग्जांपल वन ऑफ द की वर्ड दैट वी हैव यूज्ड ऑलरेडी इज इंक्लूड. हमने इंक्लूड लिखा है, राइट. इंक्लूड ऑलरेडी लिखा है हमने. वॉइड लिखा है, VOID, वॉइड मीन के पहले, राइट. तो ये सब क्या है? ये एक ऐसे वर्ड्स है जिसका ऑलरेडी मीनिंग डिसाइडेड है. These are called reserved words. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. Keywords are reserved words. Reserved words are those words which reserved words जिसके already meaning already decided है by compiler. जैसे उसको पता है कि जैसे ही मैं include देखूंगा तो उसको पता है कि include means now we are including a header file. उसको पता है जैसे ही वो void देखेगा that means we are defining a function which has no return value. ठीक है. अगर मुझे एक इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करना है तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा, दैट इज INT. दिस इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंटीजर वैल्यू, राइट. सपोज हमने ये ऑलरेडी लिख रखा है विच इज वॉइड. सपोज मुझे एक कैरेक्टर डिफाइन करना है. कैरेक्टर के लिए आई विल यूज CHAR. ये सारे जो है बहुत सारे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे. तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम सब यूज करेंगे सारे कीवर्ड्स. बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड. रिजर्व्ड वर्ड का मतलब मैं इनको खुद अपने मीनिंग के हिसाब से यूज नहीं कर सकता हूँ. मतलब मैं अगर चाहूँ, मुझे लगता है कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम इंटीजर है, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम इंटीजर है INT, तो मैं नहीं यूज कर सकता हूँ. व्हाई? बिकॉज दीज आर रिजर्व्ड वर्ड. दे हैव ऑलरेडी देयर ओन मीनिंग. वो जो बिल्ट इन टाइम पे प्री कोडेड प्रीवियसली रिटन प्रोग्राम्स है, प्रीवियसली रिटन मीनिंग्स है उसके, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है. कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड, may not be used as constant or variables or any other identifier. आप इसको किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते हो. These are copyrighted reserved word which has its own meaning, which has its own definition. ठीक है. So there are several keywords. If I'm not wrong, there are 52 keywords. If I'm not wrong, there are 52 keywords, and there are list of it, and every keyword has its own meaning. For now, अभी आपको दो तीन जो मैंने बोला है कि अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू डिफाइन करनी है तो हम यूज करते हैं INT. अगर आपको कोई कैरेक्टर वैल्यू डिफाइन करनी है देन वी कैन यूज CHAR फॉर कैरेक्टर. अगर आपको कोई डेसिमल वैल्यू डिफाइन करनी है देन आई कैन गो फॉर फ्लोट. फ्लोट स्टैंड्स फॉर डेसिमल नंबर्स. और अगर हमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है विच हैज नो रिटर्न वैल्यू, आई कैन यूज वॉइड, जो हमने ऑलरेडी यूज किया है. इसके अलावा जो दिख रहे हैं वो हम लोग धीरे धीरे यूज करना शुरू करेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Now we will swiftly move to the last topic which is white space. White space का मतलब बहुत सिंपली, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैंक्स, टैब्स और न्यू लाइन कैरेक्टर्स एंड कमेंट. आपके सी प्रोग्राम में बहुत बार ऐसे लाइन ऑफ कोड आप लिखोगे जहां पे आपको स्पेसेस देना पड़ेगा, सिंगल स्पेस. तो वो सिंगल स्पेस को जनरली हम व्हाइट स्पेस बोलते हैं. सो व्हाइट स्पेस क्या करता है, हम लोग स्पेसेस क्यों देते हैं? फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग, जैसे सपोज यहाँ पे आयुष ने लिखा है इट कैन नॉट बिगिन विद नंबर. ही हैज यूज्ड इट और कैन नॉट के बीच में एक स्पेस. देन कैन नॉट एंड बिगिन के बीच में एक स्पेस लिखा है उसने. देन बिगिन एंड विथ के बीच में एक स्पेस है, एंड विथ और नो के बीच में एक स्पेस है. So these spaces identifies, उसके स्पेस होने से मैं I can identify clearly what are the different words. कि एक it है, then cannot है, then begin है, then with है, then number. So the white spaces actually let you identify. It separates one part of the statement from another part, so that I can clearly read it. जैसे clear sir ऋतिक ने लिखा है तो मुझे समझ में आ गया that there are two words, right? So just to identify, just to understand the context or the statement or what has been written here is हमको स्पेसेस देना पड़ता है इन इंग्लिश. वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में भी स्पेसेस आर इंपॉर्टेंट, एंड दीस स्पेसेस आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाइट स्पेस. सो आप देखोगे सेकंड पॉइंट में ही लिखा हुआ है दैट व्हाइट स्पेस सेपरेट्स वन पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट that enables the compiler to identify one element in a statement such as int, and it ends and the next statement begins. जैसे नीचे का एग्जांपल है c space equals to space a space plus space b semicolon. प्रॉपर्ली मैंने लिख रखा है स्पेस का यूज करके, सो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट इज c इज इक्वल्स टू a plus b. सो वैसे ही जो कंपाइलर है जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाला है उसको सारी चीजें समझने के लिए व्हाइट स्पेसेस का यूज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दोनों चीजों का हो जाता है. नॉट ओनली इट इज much more easier for us to read, human readable तो हो ही जाता है because we have a habit of using spaces every now and then in my statement or maybe in English language. जब कभी हमको लिखना होता है we use spaces.
So it is easier for us also to read, and it is also easier for compiler to understand the code and execute it eventually. Okay, so these are the basic 6 syntaxes that you must be knowing before diving into the programming of C. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे डेटा टाइप्स इन सी, जो हमने अभी यहाँ पे बात की है, दैट व्हाट आर द डिफरेंट कीवर्ड्स. जैसे हमने इंट, कैरेक्टर एंड फ्लोट बोला है कि अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यूज लेनी है तो इंटीजर डेटा टाइप होता है, जब मुझे कोई कैरेक्टर वैल्यू लेनी है तो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, अगर मुझे डेसिमल वैल्यू चाहिए तो फ्लोट वेरिएबल होता है डेटा टाइप. सो इन द नेक्स्ट क्लास